چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے، بکتا ہے، ارے پر کنز الایمان بریلی والے کا، پر کنز الایمان بریلی والے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے اپنے اس چینل پہ اشفاق دیوبندی کا آڈیو پارٹ 1 پیش کیا تھا۔ اب آپ حضرات اشفاق دیوبندی کا پارٹ 2 آڈیو سنیں۔ اس میں دیوبندی اشفاق نے درود و سلام کو بکواس بتایا ہے، اور یصلون کا مطلب یہ دیوبندی اس کا ترجمہ خلاصہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں گے تو آپ حضرات کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا دجال حرام خور ہے۔ تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں۔ آڈیو پیش کرنے کا مقصد ہے آپ حضرات کو ان دیوبندیوں کا منافقت اور جو گستاخی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کرتا ہے، اس کی پوری بات آپ حضرات کو معلوم پڑ جائے، اس لیے آڈیو پیش کرنے کا مقصد ہے۔ تو آپ حضرات ان دیوبندیوں حرام خوروں سے بچ کے رہیں اور اپنے دوست احباب گھر والوں کو سب کو بچا کے رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو ہلو، ہاں ہلو جی حضرت یہ ایک دیوبندی مولوی ہیں جن کا نام مولانا اشفاق دیوبندی ہے، یہ قاسمی ہیں، دارالعلوم دیوبند سے شاید فارغ ہیں۔ اچھا، ہاں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کا جو تم معنی لے رہے ہو، یہاں کیا لے رہے ہو اور کس کے لیے لے رہے ہو؟ یہ کیا لے رہے ہیں؟ یہ کیا لے رہے ہیں؟ یہ اپنا بتا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اپنا بتائیے محترم، کیا آپ لے رہے ہیں؟ السلام علیکم من اتبع الہدی، خیریت سے حضرت؟ جی جی فرمائیں۔ حضرت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو استدلال یہاں کیا جاتا ہے درود و سلام کا، کہ نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، نماز کے بعد، تو اس آیت میں کہاں فرمایا گیا ہے کہ اذان سے پہلے آپ درود و سلام پڑھیں کھڑے ہو کر کے؟ اذان سے پہلے درود و سلام کے لیے نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یہ تو اتنی دیر سے یہ صاحب ایک کہہ رہے ہیں منٹ پہلے کہ میری بات اللہ محترم آپ نے کہہ لیا نا، میری بات سنیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود و سلام کا حکم کہاں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جی 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 تو یہ بتائیے کہ جس چیز کا حکم نہ دیا جائے، اگر اس کا آدمی یہ کرے تو وہ کیا ناجائز ہوگا؟ اگر نہیں، تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ منع کہاں کیا گیا ہے کہ یہاں اس وقت مت پڑھنا، اس وقت مت پڑھنا۔ ایک منٹ، اگر ہم یہی پوچھ رہا ہوں محترم، آپ بتائیں کہ کیا حضرت ایک منٹ، یہ بتائیں کہ باپ کو گھر سے نکالنا منع کہاں کیا گیا ہے؟ یہ بتائیں۔ کیا جی؟ یہ بھی تو نہیں ہے کہ باپ کو گھر سے نکال دو، باپ کو گھر سے نکالنا منع کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سلف صالحین سے کہاں؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باپ کو گھر سے نکال، الٹا سوال ہو گیا، یہ تو فالتو کی بات ہے۔ رکیے نا نہیں آپ میری بات سنیے، آپ خود ہی اپنے قول میں پھنس رہے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں اس کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ گیا نا کہ جب اس کی فضیلت اتنی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ گستاخی کریں گے تو کتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیے کہ فضائل کے حوالے سے باپ کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ہے حضرت انہی سے پوچھیے یصلون کا معنی یہ لیتے کیا ہے، اسی پر بات کیجیے، تو پھر بھاگنے لگے۔ پوچھ لیں گے کہ یصلون کا یہ کیا معنی لیتے ہیں؟ یہ تو بھاگ رہے ہیں اب ادھر آ کر۔ وہ ساری چیزیں بھاگے نہیں، اگر بھاگے ہوتے تو ہم اتنی دیر رکے نہ ہوتے۔ آپ نہیں تو اسی پر بات کیجیے نا، جیسے مجھ سے بات کر رہے تھے، تو میں بتا رہا ہوں۔ سنیے نا یہ بتائیے آپ محترم کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ کو گھر سے نکالنے کا کہاں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ منع کہاں کیا گیا ہے؟ ہاں، منع کہاں کیا گیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ باپ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے؟ بالکل دیا گیا ہے، مسلم ہے۔ اس سے آپ کیا مطلب، جب اس کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے کہ اس کی فضیلت یہ، باپ کی فضیلت یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو اس کے ساتھ گستاخی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بتائیے۔ تو میں نے یہ بتایا جیسے آپ نے کہا کہ منع نہیں کیا گیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ بلکہ شریعت میں آپ ہی اپنے قول میں پھنسیں گے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا
कि बाप को घर से निकालने के लिए मना कहा किया गया? मना नहीं किया गया, मना कहा किया गया। जैसे आप बता रहे हैं कि दुरूद पढ़ना मना नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं कि घर से बाप को निकालना मना नहीं है, तो आप ये बताएं क्या बाप को घर से निकाल दिया जाए? हमने आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछा, आपसे मैंने एक बात पूछी, ये बताइए कि अजान से पहले अगर हम हजरत कुरान में है अपने माँ बाप को उफ ना कहो। आप खामोश रहे, आप जब आलिम नहीं तो खामोश रहो ना, जब आपके आलिम बात कर रहे हैं तो आप बात करने दो उनको। सुनिए ना मोहतरम, हेलो जी, ये बताइए कि आपसे मेरा एक सवाल था कि अगर हम दुरूदो सलाम से पहले वो अजान से पहले दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, ठीक है जी, तो इससे मतलब आपके एतबार से ये क्या है, मतलब सही नहीं है, गलत है? देखो ये नबी ने न फरमाया है, न सहाबा ने बताया, न उनका कोई अमल हमें मिला है। अगर हो तो आप बराए मेहरबानी पेश कर दें, हम इंशाल्लाह आज ही से शुरू कर दें। तो मतलब अगर जो सहाबा ने नहीं किया, जो नबी ने नहीं किया, ठीक है, अगर उसको आज सलाफ़े सालिहीन ने, आइम्मा मुज्तहिदीन ने, अरे हम क्या कह रहे हैं, अगर आज मतलब आज का अगर कोई उम्मती करता है तो क्या वो नाजायज होगा, शिर्क होगा, बिदअत होगा या कुफ्र होगा, क्या होगा? कुछ तो होगा ना भाई। बिदअत होगा, जो जिसकी दलील शरीयत से न मिलती हो तो वो बिदअत होगा ही। अच्छा, जिसकी दलील शरीयत से, आप ये बताइए, जिसकी दलील पहले आप अपना मौक़िफ़ बताएं कि क्या आप देवबंदी मसलक को फॉलो करते हैं या पहले हदीस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम भी हूँ देवबंदी मसलक का। देवबंदी मसलक का, तो यानी कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा इकराम ने नहीं किया, तबा ताबईन ने नहीं किया, सल्फ़े सालिहीन ने नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए बिदअत हुआ, ठीक है। आप एक सही हदीस पे आपका ये है ना, हम सही हदीस से जो है आपसे एक ये पूछ रहे हैं, सही हदीस से आप मुझको ये साबित कीजिए कि जो काबा और मदीना शरीफ में अज़ान तहज्जुद होती है उसकी दलील हमें ले आकर के दे दीजिए। हजरत थानवी जी का देवबंदियों का एक हवाला मिल गया है, देवबंदियों के कुरान से है। रुकिए अब इन्होंने भी दरूद माना लिया है। अब ये देवबंदी खुद अपने गले में जो है हाजी का फंदा डाल के मर जाए, लटक जाए। उस पर हम बात कर लेंगे। देख लिया मैंने, देवबंदियों का तर्जुमा भी यही बता रहा है। एक मिनट, अज़ान तहज्जुद जो मदीने शरीफ में होती है, काबे शरीफ में होती है, उस अज़ान तहज्जुद को सही हदीस से कि जिनके रावी जो है, ज़ईफ़ हदीस से नहीं, जिनके रावी को जो है सिका कहा गया हो और जिनके रावी जो है क्या नाम है, मतलब हर एतबार से सही हो, फिर उस हदीस से हमको ये साबित कर दीजिए कि अज़ान तहज्जुद अल्लाह के रसूल के ज़माने में होती थी। एक दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं था उसको अगर आदमी कोई अब इस्तेमाल करे, अब उसको जो है करे तो वो बिदअत है। मोहतरम आप ये बताइए कि आज जैसी जैसी जरूरत हो रही है वैसे वैसे आदमी काम कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी में एसी नहीं लगती थी। आज के जमाने में जो मस्जिद है उसमें उनमें जो है टॉपिक बदल गया हजरत, इन्हें इसी पर रगड़ो, क्योंकि देवबंदियों ने भी दरूद माना लिया है। इसी पर रगड़ो हजरत, जाओ मत ही कहीं, मत जाओ। ये दरूद पे बात ही कहाँ कर रहे हैं? ये तो हाँ, तो ये भाग रहा है ना, ये भाग रहा है, दरूद पे ही रगड़ो। ये थानवी का तर्जुमा बता रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते रहते हैं। इन्होंने लिखा है दरूद भेजते रहते हैं, लिहाजा ए ईमान वालों तुम भी पैगंबर पर दरूद और सलाम भेजा करो। ये देवबंदियों का तर्जुमा है। देवबंदी मौलवी अब फांसी का फंदा गले में लटका के मर जाओ। क्या मुराद थानवी अलैहिर्रहमान ने जो समझा वही आप समझे, ये इस बात की वजाहत करे। नहीं, दरूद पर भेज रहे थे ना। चलिए ना, छोड़िए ना। मतलब आप जो मतलब थानवी अलैहिर्रहमान ने समझा है वही आप समझ रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा को जो है आप क्या समझ रहे हैं? आप हमको थोड़ी सी वजाहत फरमा दी हवाले से। मसला आपका है, हम आपसे समझना चाह रहे हैं ना। आपकी तो किताब का तर्जमा भी हो गया। अब आप बताइए ना, हम तो जो आपकी ही किताब से हमने ये तर्जमा किया कि युसल्लूना को जो है दुरूद सलाम से ही वो ये किया। बेशक आप बताइए ना, इससे थानवी साहब क्या कहना चाहते हैं? हमने तो आपकी कौन सी किताब है बताओ। अरे कुरान है, कौन सी किताब है? कुरान है थानवी का। कौन सा है, नाम बताओ। तर्जमा जो है थानवी का तर्जमा उन्होंने लिखा है कहाँ? पूरा सुनाओ शुरू से। वाह क्या बात है। अरे भाई इनको कह दो कि थानवी का कुरान उठा लो, हमसे मत मांगो ना। आपके पास है थानवी साहब का तर्जमा कुरान? हाँ, मैं यहाँ से मैं कुछ बताऊंगा, ये मान लेंगे क्या? आप मान लेंगे? मान लूंगा। सही से बताइए। पढ़िए भाई।
हाँ? पढ़िए नूर हसन भाई। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते रहते हैं। ये थानवी का तर्जुमा है। लिहाजा ए ईमान वालो, तुम भी पैगंबर पर दरूद और सलाम भेजा करो। आला हजरत ने भेजा करो नहीं लिखा है, बहरहाल दूसरा लिखा है, और मतलब अल्फाजों में हेर फेर है, मगर दरूद का वही माना लिया है। इन्होंने मुझसे दरूद पर बहस की कि दरूद किसका माना लिया है। मैंने कहा दरूद युसल्लू का माना लिया है, युसल्लूना अलन नबी। फोटो खींच के जहाँ पढ़ रहे उसका और शुरू किताब का वर्क उसका फोटो खींच के हमारे पास। अरे फिर वही बात हजरत, इनको कहो थानवी का तर्जुमा बताओ तुम। आप हम उसको मान लेंगे, आपने तो पहले ये कहा और फिर अब फोटो पे भी आ गए। चलो भाई इनको फोटो भेजो। नहीं, मैं भेजूंगा ही नहीं। मैं तो कहूंगा थानवी का कुरान उठाओ, पहले कसम खिलवा दूंगा अभी यहीं। थानवी का कुरान उठाओ। इनके घर में इनके थानवी साहब की किताब नहीं है, बताइए। नहीं है, इतनी भी औकात नहीं है थानवी की कि ये थानवी का कुरान रखें। इनके घर में जो है मौलाना थानवी के फॉलोअर है और ये मौलवी है, मौलवी तर्जुमे कलाम पाक नहीं रखे। ये बताइए जी। बकवास ना करो, इधर की बात। अरे बकवास ना करो, थानवी का कुरान उठाओ। मैं कुछ नहीं भेजूंगा यहाँ से, मैं तुमसे ही पढ़वाऊंगा उधर से। ये धोखाबाज देखो, अभी कह रहा था कि थानवी सर के। अरे मैं तुमसे ही पढ़वाना चाहता हूँ। अरे यार नूर हसन भाई हेलो। जी इनके इल्म का मुझे अंदाजा हो गया जी, ये जाहिल हैं। ये एक तरफ जो है कह रहे हैं कि बाप को घर से निकालने के लिए कहाँ मना है, ये इनके इल्म का अंदाजा हो गया। हाँ जी मुझे इनके इल्म का जबकि बाप की फजीलत में। एक मिनट, थानवी साहब का जो बता रहे हो, आप पढ़ रहे हो, हम कैसे मान ले कि तुम सही पढ़ रहे हो? तुम भेजो, फोटो भेजो। अच्छा, तुमने क्या पढ़ा है थानवी के कुरान में, मुझे जरा ये बता दो। अभी तो आप मानेंगे, लेकिन तुम ही भेजोगे जब ही मानेंगे। हजरत इन्होंने क्या पढ़ा थानवी के कुरान में, जरा इनसे तो पूछ लो। जल्दी भेजो। सुनो ना, फोटो भेजो। इनका नाम क्या हो? फोटो भेजो, फोटो जल्दी से, जो जहाँ से आपने तस्वीर की है, तर्जुमा किया है वो, और शुरू वाला। पूरी इबारत से क्या करते, आप इस पूरी इबारत से क्या तर्जुमा करते हैं, जरा आप बता दीजिए। नहीं, आप जो अभी माना किए उसका लाए, हम उसको देख के बताएंगे कि थानवी साहब ने सही किया है या क्या किया है। ये बताइए ना। थानवी साहब का आप बता रहे हैं ना, हम उन्हीं से बताएंगे। आप पढ़ के बताए उसको भेजें, फोटो खींच के भेजें, ये बताइए, फोटो खींच के भेजें। तुम्हारे घर में कुरान नहीं है थानवी का? युसल्लूना फेले मुजारा है, फेले मुजारा युसल्लूना। हाँ, आप फोटो खींच के भेजें। एक मिनट, फेले मुजारा है कौन है? मारूफ है, मजहूल है, क्या है? जमा मुजक्कर है, क्या है? वाहिद गायब है, वाहिद हाजिर है, क्या है? कुछ बताओगे कि खाली फेले मुजारा? फेले मुजारा में आप फोटो खींच के भेजें, आप इसके भेजें जो बता रहे हैं ना। नहीं, मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, मैं तुमसे उधर से पढ़वाऊंगा। बहुतान बांध रहे हो आप। नहीं, बहुतान हमारा काम ये नहीं है कि बहुतान बांधे। हम मानेंगे आप तर्जमा जहाँ से कर रहे हो उसको, और शुरू वाला पेज, शुरू वाला सफा, दोनों खींच के फोटो भेजो। मतलब युसल्लूना फेले मुजारा के मारूफ है, मजहूल है, क्या है? आप जो तस्वीर करके भेज रहे हो उसको भेजो। मतलब थानवी साहब पे बहुतान लगा रहे हो ना, थानवी साहब पे बहुतान लगा रहे हो, उसको भेजो जल्दी से, शुरू का जहाँ लाइन पर आओ, एक मिनट लाइन पर आओ, भेजते लाइन पर आओ। जी, क्या व्हाट्सएप नंबर क्या तुम्हारा? अरे हजरत भेजना कुछ, अरे भेजो मत। मैं ये चाहता हूँ कि ये अपने थानवी के कुरान से पढ़ के हमें बताएं। नहीं, आप पढ़ के बताएं। मैं इनकी जबान से सुनना चाहता हूँ कि ये क्या पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे या डंडी मारेंगे? हो सकता है आपने। हाँ हजरत, एक बात और बता दूं हजरत, वही भेजा उन्होंने अभी डंडी मारी हजरत। जहाँ से आप पढ़ के भेजो उसको एक मिनट, तुम खामोश रहो उसको, और शुरू वाला, तुम खामोश रहो हजरत। शुरू वाला पेज, और इन्होंने पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी इन्होंने कहा कि ए ईमान वालों, फरमा रहा है कि ए ईमान वालों ले आओ, और शुरू का पेज पहले थानवी साहब का भेजे। भेजो मत, ये पढ़ के खुद बताएंगे उधर से। हम मानेंगे, आप ही की बात मानेंगे, लेकिन आपने जो कहा कि थानवी साहब का हालत देखे, तो आप थानवी साहब की किताब का उसको और शुरू वाला पेज भेजे, ताकि हम माने कि आप अदालत में सही है, आप झूठ नहीं बोलते। हो सकता है जब इनको अपने घर के तर्जुमे का इल्म नहीं है, आए हैं ये बहस करने होगा। हजरत आपने तो ये कहा कि तर्जुमा कलाम पाक पढ़िए, मैं मान लूंगा। आपने तो ये कहा था, ये बताइए कि आप मान लूंगा, आप पूरे तरह से मुतमईन करेंगे ना। आपने थानवी साहब का हवाला दिया तो आप मैं मान लूंगा। तुम कभी नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर मोहर लग चुकी है यार। वो भेजो, हम मान लेंगे,
दुरासा हम मानेंगे। आप ये बताओ, आपने ये कहा कि आप पढ़िए मैं मान लूंगा, आपने ये नहीं कहा कि भेजिए मैं मान लूंगा। आपने जी नहीं, अब मैं ना तो मैं पढ़ के बताऊंगा ना मैं इन्हें भेजूंगा। जल्दी क्यों मुकर गए कि नहीं भेजेंगे? मैं इनसे ही सुनना चाहता हूँ कि थानवी का तर्जुमा उठाएं और पढ़ के बताएं। आपको नहीं उठा रहे हो क्या? आप इन्होंने डंडी मारी तर्जुमा करने में। जहाँ से आप थानवी साहब का तर्जुमा कर रहे हैं वो भेजे आप, शुरू का जहाँ से तर्जुमा किए वो, और जहाँ से शुरू वाला पेज और जहाँ से तर्जुमा किए। दुरासन भाई मत बोलो यार, जी मुझको बात कर रहे हो। हाँ मैं खामोश हूँ। आपने अभी ये बात कही है कि आप जो है पढ़ो मैं मान लूंगा, ठीक है। जब वो लेकिन मुझे शक है, मुझे डाउट है। तो जब आपको शक है उन्होंने ये कहा था कि खत्म हो जाए, उन्होंने ये कहा था कि आप कुरान उठा लीजिए, तो आपने क्यों नहीं कुरान उठाया? आपने मेरे पास नहीं है ना थानवी साहब वाला। तो जब वो नहीं है जब नहीं था तो आप ये कहते ना कि ठीक है आप उसका फोटो भेज दीजिए, जब मैं मानूंगा। आप कहे कि आप पढ़िए उसके बाद मैं मानूंगा। जब आप थोड़ा शक है ना, हो जाएगा। वो तर्जमा क्यों नहीं करते? आपसे मैं तर्जमा करा रहा हूँ, आप भी नहीं कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा शक हो रहा है। आपने नबी का तर्जमा करिए कि ये बताइए पहले योसल्लूना से आप क्या माना लेते हैं? योसल्लूना कौन सा फेल है? और उसके बाद योसल्लूना कौन पहले मुजारा मारूफ है, मजबूल है, कौन सा सेगा, कौन सा? इसका तर्जमा करो ना, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। बताओ थानवी साहब का जहाँ से आपने तर्जमा किया है। अरे यार वो मैं भेजता हूँ, इस तरह की बात कर रहे हो ना, वो मैं भेजवा रहा हूँ वो भी सारी चीजें। लेकिन आप पहले अपने दावे पे आप ये करिए ये कहिए कि मैंने जो ये बात कही ये मतलब मैंने झूठी बात कही, मैं इससे रुजू करता हूँ। मैंने आपकी बात पे एतमाद नहीं किया, वरना आपने तो ये कहा कि मैं एतमाद कर लूंगा, आप पढ़िए। आपने ये नहीं कहा कि भेजिए तब मैं एतमाद करूंगा, आपने कहा कि आप पढ़िए, मैं आपके पढ़ने पे एतमाद कर लूंगा, उसको मान लूंगा। तो जब उन्होंने पढ़ दिया तो शक हो गया ना? आप तो शक हो रहा है, तो शक हो रहा है। तो जब आपको ये शक हो रहा था, या क्या आपको मतलब बरेलवी जमात पे आपको क्या भरोसा है? हमें तो देवबंदियों पे भरोसा नहीं है, जैसे कि आप अभी मुझे तुम्हें तो अल्लाह और उसके रसूल भी नहीं, तुम देवबंदी खयानत करते हैं, हमें इस पे तो भरोसा नहीं, इसलिए कि भी रात में एक देवबंदी मौलवी खयानत किया। आप ये बताओ कि क्या बरेलवियों पे आपको भरोसा है? जब आपको भरोसा नहीं था, जैसा कि देवबंदी कहते नहीं हमें बरेलवियों पर भरोसा नहीं है, तो जब आपको भरोसा नहीं था तो आपने क्यों कुरान शरीफ से पढ़वाया? सब पे नहीं है ना, तो उनमें आप हो। एक मिनट, उनसे क्यों आपने कुरान शरीफ पढ़वाया? जब वो कह रहे हैं कि आप उनसे, जब वो कह रहे हैं कि आप अपने हाथ में कुरान शरीफ ले लीजिए फिर मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपने कहा कि नहीं आप पढ़िए, मुझको भरोसा है। जब वो पढ़ दिए तो कह रहे भेजो, आप ये कहते कि नहीं भेजिए जब मैं भरोसा करूंगा। आप इस तरह की बात करो, चलो ना, इसका मत पहले छोड़ो, ये बताओ पहले इसका तर्जमा कर लो ना तुम। जो सल्लूना कौन सा फेल है जो आपने हजरत थानवी करने नहीं आता, उसका पहले आप डाउट पूरा डाउटफुल करें पूरा जी। जो आपने थानवी साहब पे बोहतान बांधा वो पहले भेज है, वो अभी बात समझ में आ जाएगी। पहले आप ये बताइए कि क्या आपको तर्जमा करने नहीं आता है? तर्जमा करने नहीं आता है आपको? आता अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम करिए ना, तर्जमा करिए ना। थानवी साहब का तर्जमा, थानवी साहब का जो आपने हवाला दिया है, थानवी साहब को उन्होंने तर्जमा कर दिया। एक बार नूरसन भाई थानवी तर्जमा करिए ना। आप नहीं करूंगा, ये खुद ही करके बताएंगे, अब नहीं करूंगा। नहीं, आप एक बार फिर करिए, चलिए फिर करिए, तर्जमा करिए, पहले करिए भेजे पहले थानवी साहब को पेज फोटो। आप सुनिए, जरा सुन लीजिए उसको फोटो करके भेजा, हमने सुन लिया है। अरे गलती कहाँ कर रहे हैं वो बताइए ना, आपके तबाब से कहाँ गलती हो रही है? देखिए हजरत, मैं पूरी बात बता दूं। तस्लीम जी, देवबंदी आलिम साहब, देवबंदी मौलवी साहब, आप भी खामोश रहे हैं। थानवी साहब का फोटो खींच के भेज दें। मोहतरम खामोश रहे, आपने तर्जुमा किया है। थानवी का फोटो थोड़ी लगा है कुरान पे, थानवी का फोटो खींच के भेज दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। नहीं हजरत, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसको कुरान उठवाओ, इसको कुरान उठवाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने बोहतान तराशी की है थानवी के लिए। अगर ये थानवी का तर्जुमा ना हो, ये बताइए क्या इस तर्जमे में बोतान बांधा है इन्होंने? भेजने से आपने जो कहा तो उसको सही कह रहे हैं। अब इससे इसी पर बहस करो कि मैंने अगर तर्जुमे में डंडी मारी है और थानवी की तरफ झूठा इल्जाम लगाया है तो मेरे लिए सजा चुन ले, और अगर यही है तो सुन्नी बन जा, बरेलवी बन जा, बस इससे यही कह दो। लेकिन तो तुम क्यों नहीं दे रहे? तुम फोटो मैं नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ ना झूठे मक्कारों को, ना मैं पढ़ूंगा और ना तुझे बताऊंगा। थानवी का कुरान उठाओ और जल्दी से तर्जुमा करो। भाग रहा, देखो भाग रहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आपका नाम दे करके बताया और फिर भाग रहा है। तुम फोटो खींच के देने में क्या है? तुम्हारा झूठ अभी पकड़ा जाएगा। तो देख रहे हैं हजरत,
मैं कह रहा हूँ कि तू थानवी का कुरान था। फोटो जहाँ से तर्जुमा किया है, अच्छा, जितने भी हजरात इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, जिनके पास थानवी का तर्जुमा कुरान है, वो आयत नंबर ये 33 सूरत नंबर 33 है, आयत नंबर 56 है। आप हजरात इस कुरान पाक को उठाकर देख लें और फैसला कर लें, बस बात खत्म, फैसला खत्म। कह रहे हैं कि जहाँ से तर्जुमा किया है और पहला पेज आप भेजें मैंने तामीन को बता दिया है, सबका हवाला देके किया है, उसको भेजें। आप भेजने में क्या होगा, आपको भेजें जल्दी से। तामीन हजरात, आप तमाम हजरात खुद ही फैसला कर लें। इस देवबंदी ने जो इतनी देर से बहस की है भेजें, लेकिन दरूद पर, दरूद के माना पर, कि तुमने जो दरूद का माना लिया है कहाँ से लिया है, इसी को तमाम बदअकीदे यही माना ले रहे हैं। हवाला दिया है कि थानवी साहब ने ये तर्जुमा किया। हम कह रहे हैं कि थानवी साहब का जो तर्जुमा किया है हाँ रिकॉर्ड हो रही है, और शुरू से, ताकि हमें यकीन हो कि हाँ थानवी साहब ने सही किया है। एक मिनट तो नहीं बांध रहे, झूठ। एक मिनट देखिए, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, बार बार नहीं सुन रहे इनके। अब नहीं छुपेंगे, अब नहीं छुपेंगे, ये बड़बड़ की दुकान लग गई है। ये है देवबंदियों की हकीकत, ये है थानवी के चाहने वालों की हकीकत। ये चुप नहीं रहे हैं। अपना नाम बताइए, नाम बताइए, नंबर बताइए मुझको। पहले भेजो उसका, थानवी साहब का अपना नंबर बता दीजिए इनको। थानवी साहब का वो भेजो, वही यही मेरा। अरे यार तर्जमा कर दो रोशन भाई, मैं वही कह रहा हूँ, तर्जमा कर दो। थानवी साहब पे जो झूठ बोला है, शायद मेरे ख्याल में है, मुझे शक ख्याल में डूबा हुआ है, शक में डूबा हुआ है। हाँ, तो थानवी साहब का झूठ बोला है, उसका तर्जमा भेजो, तभी मुझे यकीन होगा। मुझे थोड़ा सा शक है, उसको भेजो जल्दी से, फोटो खींच के, शुरू वाला जहाँ से तर्जमा लिया है, तब मैं मानूंगा। जी फरमाए हजरत। अरे यार तर्जमा एक बार कर तो दो हजरत, मैंने तो कर दिया, मैं दोबारा कर देता हूँ, मगर मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि ये फिर कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। मैं ये चाहता था, हजरत मैं ये चाहता था कि ये कुरान उठाए, वो तर्जमा यूट्यूब पे भी लगेगा, वो घबराइए। बिल्कुल लगेगा इंशाल्लाह। मैं ये चाहता था कि ये कुरान उठाए और खुद करे, ये बहस खत्म हो जाए, मगर मैंने तामीन हजरात से बोल दिया है नहीं है, तुमने थानवी साहब नहीं किया, तो उसको भेजो ना, ताकि तुम्हें पता चले कि नहीं अब इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे जाएगा इंशाल्लाह। ये तुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाएगा, तेरी जहालत को दिखाना है। करो आप तर्जमा करो रोशन भाई। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेजो, ताकि पता चले कि तुम खयानत नहीं कर रहे। अब सुनो भाई, देवबंदी मौलवी चुको, भेजो उससे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते रहते हैं, लिहाजा ए ईमान वालों, तुम भी पैगंबर पर दरूद और सलाम भेजा करो। जल्दी से आप भेजो उसको। अगर तो ये बोलता रह गया, मेरी गुफ्तगू को नहीं सुना, मैंने जो आयत पढ़ी उसको नहीं सुना। क्या तुम धोखा दे करके थानवी साहब का नाम ले करके तुम बता। अरे थानवी साहब का तू तर्जुमा उठा लेना यार। थानवी साहब मेरे पास नहीं, तू भेज जो तू कह रहा है। ये बताओ, ये बताओ कि इसमें क्या धोखा लगा है आपको? बस हाँ, धोखा बता दे। आपने ये कहा, आपका ये दावा है, इससे इतनी बहस करो कि सल्लू का माना कहाँ क्या लिया जाता है, सल्लू का माना क्या लेते हैं। एक मिनट ये सल्लू मत नहीं बता पाएंगे, ये कौन सा पहले, ये क्या मतलब, हम अभी तो पूछ रहे हैं। हाँ, इस पर बात कीजिए इससे। थानवी साहब का जो आपने हवाला दे के कहा कि थानवी साहब का तर्जमा है, उन्होंने तर्जमा किया दरूद का, तो वो आप भेज दो ना, बात खत्म। एक मिनट रुको ना यार, रोशन भाई आप मत बोलो। हम थानवी साहब का नाम दे करके कहा कि थानवी साहब ने तर्जमा किया, दरूद का किया, तो आप वो तर्जमा भेज दें ना। मेरे पास नहीं है, मैंने तो बार बार कहा मेरे पास नहीं है। जहाँ से तर्जमा किया उसको भेज दें और सुनिए ना, ये बताइए कि इन्होंने धोखा दिया है या आपका दावा है? समझ रहे हैं कि इन्होंने इस आयत में थानवी साहब के तर्जमे में इन्होंने धोखा दिया है, तो जहाँ धोखा दिया है आपसे वो तर्जमा पढ़ करके भी उस आदमी ने सुना दिया। जहाँ धोखा दिया तो क्या आप एकदम कोरे जाहिल है, क्या आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? तो धोखा हमें यहाँ लग रहा है, धोखा हमें यहाँ लग रहा है कि शायद ये हकीकत में थानवी साहब के पढ़ रहे हैं या
बता करके थानवी साहब, तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, कह रहे भैया हमें दे दो, फोटो खींच के ताकि हमें पूरा यकीन हो जाए। एक मिनट थानवी साहब ने क्या इसका तर्जमा ये नहीं किया है? आप पहले इसका इनकार करिए, तो चलिए वो भी करते आप। वो मेरे पास अगर वो तर्जमा होता मैं देख लेता, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि थानवी साहब जो है कर रहे हो उसको लेके आओ, हमें दो। अरे यार थानवी साहब आपके मसलक के उलमा में से उनका शुमार होता है, तो उनका जो तर्जमा होगा, उनका जो मौक़िफ़ होगा, वो आपको आपके मदरसे में पढ़ाया गया होगा ना, तो आप ही इसका तर्जमा कर दीजिए ना, जो उनका मौक़िफ़ है वही आप पेश कर दीजिए ना कि उनका क्या मौक़िफ़ था। या उन्होंने हवाला दे के कहा है कि थानवी साहब ने किया है, तो अब वो सब छोड़ दीजिए, तुम अपना मौक़िफ़ बताओ। एक मिनट सुनिए ना, आप अपनी जमात का मौक़िफ़, आपकी जमात जो है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा से क्या मौक़िफ़ लेती है, उसका मौक़िफ़ क्या है आपकी जमात का, और उसके बाद क्या मौक़िफ़ बयान करते हैं, वो तो भेजने की बात की चीज़ है, वो तो सोशल नेटवर्क की बात है, वो भेजा भी जाएगा, आप मुतमईन रहें। लेकिन ये बताइए कि आपकी जमात का इस इबारत से क्या मौक़िफ़ है, वो क्या इबारत का तर्जमा करती है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ तो बताया नहीं, सिर्फ आप बता दिए युसल्लूना फेले मुजारा है। फेले मुजारा में मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये फेले मुजारा मारूफ है या मजबूल है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, जमा मुज़क्कर गायब है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है, क्या है? आपने कुछ बताया ही नहीं। ये बताइए। हवाला थानवी साहब का दे करके कहा कि थानवी साहब ने तर्जमा किया, तो आप ये बताइए जो मेरे पास नहीं है ना। तो थानवी जी ने क्या क्या है अब ये बता दीजिए, थानवी जी ने क्या क्या है वो बता दीजिए, बस खत्म हो गई बात, दो बातों में बात खत्म है। जो थानवी जी ने क्या ना वो बता दीजिए, क्योंकि अब इनकी जिहालत यूट्यूब पे जाएगी। एक मिनट आप बताइए कि आप उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ इस इबारत के हवाले से नहीं बता सकते कि इस इबारत का तर्जमा क्या करती है, इस इबारत से क्या मुराद लेती है आपकी जमात? वो मेरे पास अगर किताब होती वो जो मैं बता रहा हूँ तो मैं बता देता। फिर बहस क्यों कर रहे हो? फिलहाल नहीं, जब होगी बता दो, इसलिए मैं तो आपसे मांग रहा हूँ कि किताब की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो बात ये कर रहा हूँ कि आप दे नहीं रहे हो। आपकी जमात ने हवाला तो दे दिया थानवी साहब का, लेकिन वो किताब नहीं दे रहे। अरे मेरे तो मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे पास नहीं है, नहीं है, तो आप दे दो ना मेरे पास। मैंने तो किताब की बात नहीं की, मैं तो क्या हो रहा है आपको, दिक्कत क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी आप एकदम कमिल मारती है कसम। आपको परेशानी क्या हो रही है? आप बहुतान तराशी कर रहे हो थानवी साहब का नाम लेकर के। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपको देख लेना चाहिए था कि लो थानवी साहब के तर्जमा देख लो, आप भी देख लो। मेरे पास मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है। ये बताइए कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए जरा, इसी लाइन पे फोन मत करिएगा, व्हाट्सएप नंबर बताइए, मैं अभी भेजता हूँ। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इनसे। अरे भाई बोल दो, तुम बोल दो, तुमसे पूछ रहे हैं, मुझसे थोड़ी पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ, डर लग रहा है क्या? पूछ लो, मैं कॉन्फ्रेंस अपना नंबर से राम नहीं करता। अरे मैं अच्छा ठीक है, मैं इनका नंबर बताता हूँ, आप सुन लीजिए। इनका नाम है मोहम्मद अशफाक कासमी देवबंदी, रहने वाले हैं खीरी लखीमपुर के। इनका नंबर है 8057104244। 8057 हाँ 10424222। अशफाक साहब। जी अशफाक साहब जी फरमाएं। अच्छा, आप का वो तर्जमा कलाम पाक का वो चाहिए ना, रुक जाइए, फोन मत काटिएगा। फोटो चाहिए हमें। जी फोटो चाहिए। इसी पे व्हाट्सएप है आपका? जी। अरे हजरत इनसे पढ़वाओ ना, फिर बात क्या होगी, आवाम क्या देखेगी, आवाम को सुनवाना ना इनके मुंह से हमें। अरे यार ये अपनी जहालत को आम कर चुके हैं, और इन्होंने ये कह दिया कि आपने बहुतान तराशी की है, ठीक है? हाँ नहीं, मेरा तो आप जानते हैं ना, मैं इनके मुंह से कहलवाता हूँ। और हाँ एक बात और सुन लीजिए, ये जब इन्होंने ये कह दिया कि थानवी साहब पे आपने बहुतान बांधा है, समझ रहे हैं ना बात? यानी तो नहीं है ये तर्जुमा, आप दे दो ना, हमें डाउट नहीं हुआ है ना थानवी साहब के शायद है कि नहीं है, इसलिए मैं थानवी साहब की वो इबारत मांग रहा हूँ जहाँ से आप तर्जमा कर रहे हैं, जहाँ से आप तर्जमा कर रहे हैं वही तो मैं मांग रहा हूँ। अब वो दे दो तो मेरा खत्म हो जाएगा। हमें कैसे पता कि तुम शायद सही कह रहे हो थानवी साहब का हवाले दे करके, हो सकता तुम थानवी साहब पे बहुतान मांग रहे हो, हमें दे दो, हम देख ले, हमारे पास तो हम तो बार मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, जी मांग रहा हूँ आपसे। जब इन्होंने ये कहा ना कि थानवी साहब से आप बहुतान तराशी कर रहे हो, समझ रहे हैं? हाँ तो यानी मैंने झूठ बोल दिया, तर्जुमा किया ही नहीं है थानवी ने ये। हाँ, इनका ये कहने का मतलब है कि थानवी साहब का ये तर्जमा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं देखा है, मैं देख लूंगा फिर मानूंगा कि नहीं, तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि थानवी ने तर्जुमा ही नहीं किया है। बहुतान कैसे कह रहे हो? जब आपने नहीं देखा तो बहुतान कैसे कह रहे हो, ये बताओ। तो आप दे दो ना, शक दूर हो जाएगा, पता चलेगा तुम सही बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे। दे दो ना थानवी साहब को हवाला दे के बात कर। एक मिनट, ये कह रहे मान लेंगे कि हाँ थानवी साहब ने तर्जुमा किया है। एक मिनट ये कह रहे मान लेंगे, और ये आप कह रहे हैं कि बहुतान का इतलाक कहाँ होता है, ये बताइए ना। आपको जब नहीं मान रहे हो तभी तो कह रहे हो कि थानवी साहब पे आपने बहुतान तराशी की है, तो बहुतान का इतलाक कहाँ होता है, बताइए ना।
मानने वो आप दे दो, थानवी साहब का दे दो, मुझे यकीन हो जाए कि हाँ थानवी साहब बोहतान तो मोहतरम सुनिए ना, बोहतान तो जब होगा ना कि जब आप जो है इस इबारत को ये कहे कि इस इबारत का तर्जमा ये नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये बोहतान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भेजिए मैं देखूं, ये बोहतान है। आप कह रहे हैं कि मैं उसको भेजिए मैं देख मान लूंगा, तो ये बोहतान तराशी है? ये बताइए क्या मतलब आपके मतलब बोहतान का यहाँ क्या होता है? नहीं भेज रहे, इसलिए तो मुझे शक हो रहा है कि आप ये कर रहे हैं, भेजो ना जल्दी से, मैं मान लूंगा कि अगर किया होगा तो मानूंगा, नहीं किया होगा तो आपके मानने के लिए मैं इबारत भेजूं? आप कह रहे हो कि बोहतान तराशी नहीं, आप ये कह रहे हो कि थानवी साहब से आपने बोहतान तराशी की, मतलब वो नहीं भेज रहे हो, पेज नहीं भेज रहे हो, सफा नहीं भेज रहे हो, इसीलिए तो हो सकता है तुम खयानत कर रहे हो, इसीलिए मुझे शक है कि तुम खयानत कर रहे हो, इसीलिए नहीं भेज रहे हो। आप भेजो, मैं मानूं, अगर किया होगा तो मानूंगा, नहीं किया होगा तो बताऊंगा आपको। एक मिनट, आप भेजो तो आप कर रहे हो। अशफाक साहब ये आपने ये फिर कैसे कह दिया कि आप बोहतान तराशी कर रहे हो? आपने ये बात कही है ना, तो जब आपने तो हमें जब यकीन नहीं है, तो जब यकीन नहीं, तो यकीन न होने से, अच्छा यकीन न होने से उसको ये कह दिया जाता है कि उसको इन्होंने बोहतान बांधा है। यकीन आपको ये कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है, तो पहले तो आपने ये बात कही है कि आप कर करके सुनाइए मैं मान लूंगा, आपसे पहले ये बात कहिए। फिर जब आप कह रहे हो कि मुझे यकीन नहीं है, तो क्या बताइए कि यकीन न होने का इतलाक बोहतान पे बांधा जाता है? ये बताइए। और हमें लगा कि तुम बोहतान बांध रहे हो थानवी साहब पे, उनका नाम लेकर के हो सकता है तुम बयान कर रहे हो सकता है। अभी आपने ये सब काम देवबंदियों के, हमारा नहीं है। एक मिनट रुको ना यार, रसन भाई ये अपने कॉल में फंसे हैं क्या? आप ये कह रहे हो अभी हो सकता है तो अब ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बोहतान तराशी की है, तो बोहतान तराशी की है और बोहतान तराशी यानी हो सकता है और की है में बहुत बड़ा अंतर है। अरे यार इनको मैं इन्हीं के कॉल से फंसा रहा हूँ ना, रुको ना, आप तो वो पेज दो सफा दो जहाँ से तर्जमा किया है, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि हाँ थानवी साहब ने सही तर्जमा किया है। तुम हो सकता झूठ बोल रहे हो, तुम पे बोहतान लगा रहे हो कि थानवी ने, फिर से क्या झूठ बोल रहे हो, फिर से कह दिया झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन हो जाए कि हाँ सही किया है, आप जो कह रहे हो सही है। एक बात कह रहे हो झूठ, तो जब झूठ है तो फिर जब ये बात कह रहे हो कि थानवी साहब का ये तर्जमा नहीं, तो झूठ, जब मैं झूठ बोला ना ये आप कह रहे हो, तो मैं उसको भेजूंगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जब आप देखोगे तो आपका दावा गलत होगा, फिर रुजू करोगे कि नहीं थानवी साहब ने वाकई ये तर्जमा किया था, हमने आपको झूठा कह करके गलत किया था। ये क्यों कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? ये कहो कि नहीं आप सच बोल रहे हो, ये कहो आप, ये क्यों कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? अशफाक साहब हेलो हेलो। अरे अशफाक साहब क्या लाइन पे तो हैं, बोलती बंद हो गई क्या अशफाक साहब? अशफाक साहब बोले भागेंगे या भागेंगे, राहे फरागे, भागना मत अशफाक साहब, तर्जुमा देख लो ठीक है। थानवी जी का कुरान उठा लो कहीं मोहल्ले में से जाके। आप गौर करें कि ये मौलवी जो है दावा किया था पहले कि जो सल्लूना का तर्जमा दुरूद सलाम से नहीं है, दुरूद सलाम इसका मतलब नहीं है, दरूद का नहीं है। ये सल्लूना का कह रहे थे, दरूद कहाँ से ले रहे हो? दुरूद कहाँ से ले रहे हो, ये गालिबन यही कह रहे थे ना? जी 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 जी, मैंने कहा यहाँ पे, अच्छा दोबारा इनका कॉल आ गया है, काट के इन्होंने कॉल किया दोबारा से। जी जनाब। जी क्या हुआ, क्यों चले गए? भेज दो ताकि हमें यकीन हो जाए। अरे सुनो ना। अरे बड़ी धीमी आवाज से बोल रहे हो, क्या हुआ, होश में आ गए क्या? रतन भाई आप भेज दो, हम बताएं, उसे यकीन हो जाएगा ना हमें कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। नहीं, ये दो रंग की बातें हमें पसंद नहीं है। थानवी साहब का नाम अभी तो आपने ये बात कही, अभी तो आपने रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अशफाक साहब आप खामोश रहो रतन भाई, अभी आपने ये बात कही है कि आपने मेरे ऊपर, वो थानवी साहब के ऊपर बोहतान बांधा है, ये आपका दावा था। जब मैं ये कह रहा हूँ कि बोहतान बांधा था, इसका मतलब मैंने झूठ बोला था, झूठ बोल करके उनके ऊपर बोहतान बांधा था। तर्जमे कलाम पास, तो आप दे दो ना, फोटो दे दो यार, रुको यार, जब हमें पता चल जाए कि हाँ तुम सही सही नाम लेकर के बात कर रहे हो। जब मैं बोल लेता देख क्यों नहीं रहे हो, परेशानी तुम्हें क्यों हो रही है? अशरफ अली थानवी साहब का फोटो खींच के भेज दो कि हाँ यहाँ से मैंने तर्जमा किया, ये देखें आप भी, ताकि मुझे भी जो शक था वो खत्म हो जाए, बात खत्म है। ये बताइए, देखिए जो इबारत मैंने पेश की, इन्नल्लाह की बात क्यों कर रहे हो? तुम थानवी साहब का जो तर्जमा किए हैं वो भेजो ना हमारे पास, ताकि मेरा जो शक था वो खत्म हो जाए। यार आदमी और कुरान पढ़ रहा हूँ तो अच्छा, मैं एक बात इनसे और कहना चाहता हूँ। अजीब आदमी हो, जब मैं कह रहा हूँ कि जब तुम थानवी साहब का नाम ले करके तर्जमा कर रहे हो कि थानवी ने ये तर्जमा किया, दुरूद का माना किया, तो आप दे दो, जो मुझे शक था वो मेरा दूर हो जाए कि हाँ सही वाकई तर्जमा किया है। आप दे नहीं दो, इसी से आपकी चोरी पकड़ी जा रही है कि तुम इसी में दाल में काला हो रहा है कि भाई तुम दे नहीं दो, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे कहीं गलती हो रही है, इसलिए तुम नहीं दे रहे हो। आप दे दो ना, फोटो खींच के भेज दो, कर दो, बात खत्म। अशफाक साहब ये बताइए,
आप ये क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं बताएंगे जब तक आप दोगे नहीं, फोटो दो। अच्छा, इन्होंने एक और हजरत बात कही थी, आप दे नहीं रहे हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हिसाब का ले रहे हो, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। क्या भाई वो दो हमें सुना हजरत? बात नहीं है, आप दो तो आप इनकार करो, दे नहीं रहे, इतनी ताकीद करो, इसका आखिर मुझे क्या समझी जाए, आपकी अमानतदारी समझी जाए या अलग समझी जाए? ये पूरी इबारत की तरकीब करो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आप पहले उसको दो, फिर बाद में मैं कोई बात करूंगा। आप पहले जो आप हवाला दिए अशरफ अली थानवी बंदा बोल रहा था कि आप थानवी साहब के तर्जुमे कलाम पाक में अगर नहीं दे रहे हो तो यही से आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, समझ में आ रही है? जो है कुछ कर रहे हो, बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं से कहीं फॉल्ट हो रहा है। तो कह रहा है आप दोस्त को पहले जो हवाला दिए अशरफ अली थानवी साहब का, हमें पता चला जो थोड़ा सा शक था, मैंने मान लिया था कि हाँ शायद सही हो। नहीं माना, मान लेते मेरे ऊपर ये नहीं कहते कि तुमने इल्जाम लगा दिया कि वाकई ये सही वहां से कहीं हवाला दे रहे हैं, तो इसीलिए आप पीछे हट रहे हो। आप दे नहीं रही, देर से कुछ हो रही है, आप दे नहीं रहे, हवाला हम दे देंगे, एक मिनट, वो हवाला हम दे देंगे जो आपने जिस बात तौबा करेंगे, अभी दो, अभी बात हो रही तो अभी दो, तौबा करोगे, तौबा अभी देंगे, वो दो और शुरू वाला पेज दो। सुनो, हम अभी देंगे। तो आप ये किताब बताओ, से तर्जमा कर पहले रहे ये हो बताओ, अशरफ अली थानवी से जो तर्जमे की किताब है वहाँ शुरू का, और जहाँ से तर्जमा कर रहे हो जिस आयत का, सूरह अज़ाब की आयत का, और दुरूद का जो दे रहे हो कि अशरफ अली थानवी ने दुरूद का माना किया है, तो वो दो, वहाँ से फोटो खींच के दो और शुरू से दो। मतलब आपके हिसाब से दुरूद का माना उन्होंने नहीं लिया है ना? यही सही वाकई कुछ तो बात बोलो यार, क्या बात कर मैं मानूंगा। आपने हवाला तो दे दिया थानवी ने ये तर्जमा किया, अब जो मैंने मुतालबा किया कि दे दो उसका, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि हाँ सही वाकई ने किया है कि नहीं किया। अगर मेरे पास होता तो मैं मांगता ही नहीं, ठीक है, मैं शुरू से बता देता। जब मेरे पास नहीं तो मैं मुतालबा किया भाई हमें दो, ताकि हमें हकीकत हाल मालूम हो। अब सुनो मेरी बात, आपने बोल लिया, बात खत्म है। आप फोटो खींच के दे दो कि अशरफ अली थानवी ने ये दुरूद का तर्जुमा किया है, तुम्हें मान लूंगा, कोई बात नहीं है। कितनी दोहरा रहे हो यार? सुनो मेरी बात को खामोशी से मैं दोहराऊंगा, जब तक आप नहीं दोगे मैं दोहराऊंगा। आप खयानत कर रहे हो, आप वहाँ दो, मुझे फोटो खींच के दो। अच्छा एक मिनट, पहले इनसे अब ये पूछ लो, इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। थानवी साहब ने जो तर्जुमे किए हैं वो किस किस नाम से किए हैं, जरा इतना और बता दो। क्या थानवी जी ने जो तर्जुमे किए हैं वो किस किस नाम से किए हैं? अरे तुम उसको फोटो दे रहे हो? नहीं, अब मैं तुमसे पहचान पूछूंगा और जो तुम मानते होगे मैं उसका भेज दूंगा। कि नहीं दे रहे हो? नहीं, अब जो जिसे तुम मानते होगे मैं देख के अशरफ अली थानवी सुने दो, मैं शको शुबा वाली बात नहीं पसंद करता। अच्छा नहीं, थानवी नहीं पसंद करता। जब आप पसंद नहीं करते, जब बात आगे चलेगी आप दो पहले, जहाँ से आपने अच्छा ये बताइए, नहीं कुछ नहीं बताएंगे, आप पहले दो। ये फंस गए हैं कि इसलिए नहीं बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि थानवी जी ने भी वही तर्जुमा किया है और इनकी जमात के जो और कई सारे मुतरजिम हैं उन्होंने भी वही तर्जुमा किया है, तो आप थानवी जी, एक मिनट, थानवी साहब का दो पहले, थानवी साहब की ठीक, अरे सबका दिया जाएगा, मैंने और भी तर्जुमे चेक कर रहा हूँ ना, मैं यही कर रहा हूँ। जब तुम्हारे किस आलिम ने क्या क्या लिखा है, हो रही है, सुने मैं यही चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारे किस किस आलिम ने क्या क्या लिखा है, मैं यही चेक कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थानवी साहब की वो जो हवाला दे रहे हो, मैं जब से यही चेक कर रहा हूँ कि थानवी जी के अलावा भी तुम्हारे देवबंदियों ने किस किस ने क्या क्या तर्जुमा किया है। पहले तो वो समझे जनाब, जो हवाला दे रहे थे, उसको दो। अच्छा एक मिनट, या अरे सुनो तो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका जरा तर्जुमा बता दीजिए। पहले तुम थानवी साहब तो दे दो बस। आपने ये कहा था ना कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी ईमान वालों से ही कह रहा है कि ईमान ले आओ, यानी अभी ईमान वाले नहीं है क्या? ईमान वाले ईमान ले आओ, का क्या इन्होंने तर्जुमा किया था? ईमान वालों ईमान ले आओ। जी मैंने इनको टोका के डंडी क्यों मार रहे हैं आप? दो जो तुम हवाला दे रहे हो, इन्होंने तर्जुमा किया था ईमान वालों ईमान ले आओ। हाँ रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डिंग सुन लेना। फर्माबरदार इताअत करो, फर्माबरदार हो जाओ, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करो, ये सब तर्जुमे मैंने किए हैं। तर्जुमा दो जो आप हवाला दे रहे थे थानी साहब का नाम लेकर के, वो उसको स्क्रीनशॉट करो। ईमान वाला ईमान ले आओ, ये कौन सा मुहावरा है भैया अरबी जबान में, जरा बताएंगे? फर्मा बरदारी करो, इताअत करो अल्लाह ताला की मुकम्मल तौर पे। ईमान वालों ईमान ले आओ। अरे ईमान कहाँ है? ईमान वाला है वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए। या ईमान वालों, एक मिनट, है वो लोग जो ईमान लाए, तो वही तो बात हो गई, ईमान वालों। हाँ वही एक ही बात है, तो एक ही बात। आप ये ईमान वालों ईमान ले आओ। सल्लु अलैहि, मैंने नहीं किया, मैंने तो फर्मा बरदारी और इताअत और फर्मा बरदार हो जाओ ये सब। अच्छा, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा का आपने ये कहा कि ईमान वालों फर्मा बरदार हो जाओ, है ना? इसका तर्जुमा आपने ये किया।
इताअत करो, फरमाबरदार हो जाओ। और दुरूद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस इबारत का। तो आप माना कर दो कि कौन सा ऐसा ये लफ्ज ऐसा है जिसका माना दुरूद का है और या इस वजह से दुरूद का माना लिया जा रहा है, इसकी निस्बत इसकी फरिश्तों की तरफ, सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ हो, इसका माना और अल्लाह ताला की तरफ सलात की निस्बत हो तो ये माना देता है, मोमिनों की तरफ सलात का निस्बत हो तो ये माना देता है। आप बताओ, तयन करो। जी इन्होंने अपनी बात की पूरी वजाहत कर दी जो मैं चाहता था, समझ रहे। इन्होंने ये इनकार कर दिया कि इस इबारत में दुरूद का कहीं कोई माना ही नहीं है, ठीक है जी। आप दे दो अल्फाज वो दे दो जिसका माना दुरूद होता हो। हाँ सुनिए, रुकिए ना मोहतरम, आपने अभी पूरी वजाहत कर दी कि इस इबारत का कोई ताल्लुक है ही नहीं, समझ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप वो अभी तो आप कह रहे हो, अभी आप बोले हो ना कि इस इबारत से जो है इताअत और फर्मा बरदारी जो है लाजिम आ रही है। अभी तो आपने ये बात की ना कि लाजिम, मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ये फितरत अरे यार, जो आप कह रहे हो कि लाजिम आ रही है, क्या मतलब है जो आपने बताया? झूठ बोल रहे हो आप, मैंने लाजिम का लफ्ज ही नहीं कहा, लाजिम कहा ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। क्या कह रहे हो तुम? कुछ अपना तो ये कह रहा हूँ कि भाई जिस लफ्ज से आप दुरूद का माना कर रहे हो वो लफ्ज दिखा दो कि ये लफ्ज से इसका माना है दुरूद, वो बताओ। अच्छा ये बताओ किस लफ्ज का आप दुरूद कर रहे हो? युसल्लूना अलन नबी। हाँ, ये निस्बत किसकी तरफ हो रही है? फिर वही बात, अरे अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहा है यार, दो बच्चा अटका हो क्या भाई? एक मिनट, युसल्लूना की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? युसल्लूना की निस्बत किसकी तरफ? सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ हो। अबे सलात नहीं है यहाँ, यहाँ दरूद तो सलाम की निस्बत रही है। क्या माना होता है? सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ हो तो क्या माना होता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह ताला पहले ही फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद और सलाम नबी पर दरूद भेजते हैं। सलात की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? ये भी बताया कि सलात की निस्बत अगर फरिश्तों की तरफ हो तो माना ये मुराद होगा, अरे और सलात की निस्बत अल्लाह ताला लो की तरफ जनाब, हो तो ये माना होगा। एक और नया टॉपिक खेल दिया और उसमें भी जो है ये गिरेंगे। बंदों की तरफ हो तो ये माना होगा। तो अब ये पूरी वजाहत कर किसकी तरफ हो रही है सलात की निस्बत? इनको इतना मोटा तर्जुमा समझ में नहीं आ रहा है हजरत भाई जी। आपको निस्बत नहीं पता हो रही है कि भाई सलात की निस्बत किसकी हो रही है? अब बताओ, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही क्लियर। सलात की निस्बत अगर अल्लाह की तरफ होगा और सलात की निस्बत अगर बंदों की तरफ होगा तो ये माना है। अगर सलात की तरफ हो बोले चला जाएगा कट रहे। खामोश रहो, बात बोल लिए ना, बात बोल लिए ना। अब मुझसे सुनो ना, मैं मेरी बात सुनो, समझे? अब तुम खामोश हो जाओ। ये बताओ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ठीक है? युसल्लूना अलन नबी, ठीक है? युसल्लूना, एक मिनट, युसल्लूना आपने ये अभी तक बताया नहीं कि ये कौन सा फेल है। फेल मुजारा तो आपने बताया है, आपने ये मारूफ और मजहूल, ये मजहूल है। क्या है? वाहिद है, जमा है, क्या है? जमा है। क्या है? जमा मुज़क्कर हाजिर है, क्या है? अरे तुम इसको छोड़ो तो। अरे छोड़ो नहीं, बताओ भाग रहे हो जाहिल मौलवी। तफसील इशारा बहुत बता दिया है। तफसील इशारा बता देंगे, ये बात तुमने कही, फेल मुजारा मजहूल है, ठीक है? युसल्लूना फेल मुजारा मजहूल है, दवाओं में इस्तिमरार पे दलालत करता है, दवाओं में इस्तिमरार पे दलालत करता है। फेल मुजारा दवाओं में इस्तिमरार पे दलालत करता है। तो इसका तर्जमा करो ना, युसल्लूना का तर्जमा क्या होगा? तुम इसका युसल्लूना का तर्जमा जो है, जब भाई यफ़अलूना ये फेल मुजारा मारूफ है, युफ़अलूना ये फेल मुजारा मजहूल है, ठीक है? उसी के वजन पर है युसल्लूना। तो युसल्लूना का एक मिनट ये बता दो कि तर्जमा क्या होगा? मैं आपसे निस्बत पूछ रहा हूँ कि ये देख रहे हो, ये देखो फिर अब ये युसल्लूना का तर्जमा करो ना यार, कि क्या तर्जमा होगा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या भेजते हैं? आप ऐसा माना बताओ, क्या भेजते हैं? कहाँ लिखा उसमें? क्या भेजते हैं? कहाँ लिखा उसमें? एक मिनट, युसल्लूना का तर्जमा तो बताओ ना कि क्या भेजते हैं? युसल्लूना का तर्जमा यहाँ पे तो तुमने ठीक किया। हाँ, मतलब आपका है, आप दुरूद और सलाम पढ़ते हो। युसल्लूना का तर्जमा, अरे ये शैतान है, ये नबी पर दरूद और सलाम नहीं भेजता। अरे युसल्लूना का तर्जमा, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए नबी, ए ईमान वालो, तुम भी, ए ईमान वालो तुम भी अल्लाह उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो, ठीक है? देखो सलात की निस्बत, ये देखो मेरा तर्जुमा पढ़ दिया इन्होंने।
लफ्ज़ सलात की अरबी जुबान में कई मानों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 रहमत के माना में भी आता है, दुआ के माना में भी आता है, मदह के क्या माना क्या में भी क्या आता है। क्या क्या तो अहमद के माने में आता है? सलात का माना अरबी जुबान में कई मानों के लिए आता है। नंबर 1 रहमत के माना में, दुआ के माना में, मदह के माना में। इस आयत की एक तफसीर ये है कि अल्लाह पाक दुरूद भेजने का मतलब ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचाना है, कि मकाम शफाअत और मलाइका के दुरूद भेजने का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादती मर्तबा के लिए दुआ, और यहाँ क्या माना लिया गया है बस वो बताओ। उम्मत के लिए इस्तगफार करना है। भाई इस बात आप की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुफस्सिर जो कौन से मुफस्सिर जो है इन्होंने ये बताया है कि मकाम मर्तबा को बढ़ाने के लिए? सुनो, अरे मुफस्सिर तफसीर की बात करें कि इसकी तफसीर कौन से? तफसीर रूहुल मानी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर मदारिक, किसने ये किया है बताओगे? आज घिरा है आगे देवबंदी मौलवी। अरे बताओ ना कौन मुफस्सिर है? अरे सुनो ना, मुफस्सिरीन में से कौन मुफस्सिर है जिन्होंने इस आयत की तफसीर ये की है कि इस इबारत से, इस आयत से जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा और उनके लिए दुआ मुराद है? आपने ये बात कही तो वो मुफस्सिर का नाम पहले बताओ ना। देखो यार ये भाग रहा है। मुफस्सिर का नाम बताओ ना। अभी तुमने वो तर्जमा कर दिया जो हम चाहते थे। रूहुल बयान जिल्द 7 है, तेरे पास होगी। अरे रूहुल बयान देखो जाके, जिल्द 7 है, सफा 265 है। तफसीर रूहुल क्या? तफसीर रूहुल बयान क्या? तफसीर रूहुल बयान है क्या है? आप पहले तफसीर सुन ले, पहले हाँ तफसीर सुन ले, फिर हवाला सुन ले। हाँ 3 माना है सलात के अरबी ज़बान में, 3 माना, रहमत, दुआ, मदह। इस आयत की एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह पाक के मोहतरम सुनिए मुफस्सिरीन जो है माना नहीं बयान करते हैं। एक मुफस्सिरीन माना नहीं करते हैं और आप की उम्मत के लिए इस्तगफार करना है। और मोमिनीन के दुरूद भेजने का मतलब क्या है? मोमिनीन के दुरूद भेजने का मतलब कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की इत्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और आप अलैहिस्सलाम के साथ औसाफ जमीला का तज़किरा और तारीफ करना है। और दूसरी तफसीर मैंने सुनिए कह रहे हैं ना, दूसरी तफसीर सुनिए कि ये एजाज और इकराम जो अल्लाह जल्ला शानहू ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को अता फरमाया है, जो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवा के अता फरमाया है, इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एजाज इकराम में खुद अल्लाह ताला भी शरीक है। कह रहे हैं बखिलाफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वहां तो सिर्फ फरिश्तों को दिया था, यहाँ अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मैं और फरिश्ते। या आप अगर देखना चाहें तो रूहुल बयान जिल्द 7 नंबर सफा 265 में देख सकते हैं। ठीक है, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अबुल आलिया से भी नकल किया है कि सलात से मुराद क्या है? आप अलैहिस्सलाम की ताजीम, फरिश्तों के सामने मदह सना है। आप देखें, बुखारी भी उठा करके देख ले, अबुल आलिया से जो नकल किया गया, बुखारी का जिल्द दूसरी जिल्द है, सफा 707 है, देख ले जाके। किताब तफसीर में देखें जाके, बुखारी दूसरी जिल्द सफा 707 पे किताब तफसीर है, इसमें भी देख लें। बोलिए तो बोले अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में आपकी ताज़ीम के लिए कि आपको बुलंद मर्तबा वरफाना का जिक्र और इरशाद फरमा के ऐसा मकाम अता किया कि कलमा, अज़ान, इकामत, नमाज हर जगह अल्लाह ताला के जिक्र के साथ है। अरे बात खत्म करके चुप अभी तो दूसरे की तो बात सुनो। अरे क्या काला यकूलो पढ़ा है, समय अज़मो नहीं पढ़ा है? अरे तो तुम बताओ कि यहाँ काला यकूलो पढ़ा है, समय अज़मो नहीं पढ़ा है? कैसा जाहिल हो रही है। अगर फरिश्तों की तरफ हो तो क्या माना होता है, नबी की तरफ हो तो क्या माना होता है, बंदों की तरफ हो तो क्या माना होता है? आपने जो है नबी की तरफ इसकी निस्बत हुई है तो आपने इसका तर्जमा और इससे मुराद जो आप कह रहे हो तफसीर रूहुल बयान, ठीक है, आपने जो है इससे, हाँ आपने जो है इससे ये लाजिम, आपने इस बात से ये लाजिम पकड़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा और उनके लिए दुआ मुराद है ना? तफसीर रूहुल बयान का आपने हवाला दिया। सफा नंबर युसल्लूना की जब निस्बत नबी की तरफ होगी तो क्या माना मुराद होगा? युसल्लूना की अगर अल्लाह ताला की तरफ निस्बत हो तो क्या माना देगा? युसल्लूना की निस्बत अगर आपने ये कहा ना कि आपने ये कहा ना कि युसल्लूना की जो निस्बत नबी की तरफ होती है तो उससे मकाम और मर्तबा मुराद है और मदह मुराद है, और उसके अलावा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मुराद है। आपने तफसीर रूहुल बयान का जिक्र किया और उसके सफा नंबर किस पे ये मौजूद है, जरा बताइए तो सफा नंबर। कौन मदह कर रहा है? कौन मदह कर रहा है? फरिश्ते मदह कर रहे हैं ना, फरिश्ते मदद कर रहे हैं। तो अभी तो तुमने ये बात कही है ना। लाहौल मैंने कहा कि जब अल्लाह युसल्लूना की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होगा उसकी तुमने तो नहीं बताया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जब सलात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होगी, सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो इसका मकाम महमूद और अल्लाह ताला मदह अपने नबी की शान में
हम्दो सना ये मुराद होगा। और अगर युसल्लूना की निस्बत फरिश्तों की तरफ होगा, ठीक है, तो दुआ मगफरत, दुआ रहमत मुराद होगा। अगर सलात की निस्बत बंदों की तरफ होगा, ये आपको नहीं मालूम था, मैंने बताया, जो सलात की निस्बत बंदों की तरफ होगा तो क्या होगा? हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस देवबंदी मौलवी को इतनी देर से बात समझ में नहीं आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ अपने बंदों से फरमा रहा है। बयान का फतवा मैंने दे दिया है, जिल्द नंबर उठा के भेज दिया। चलो ठीक है, अच्छी धुलाई हो गई है तुम्हारी आज। एक मिनट, अगर सलात की निस्बत अगर नबी की तरफ हो तो आपने इसका क्या ये लिया, रूहुल बयान से आपने क्या बयान जी जी जी, हाँ, क्या इससे मुराद लिया? सलात की निस्बत अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए तो इसका क्या मतलब होगा, आप बताएंगे ना? तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ तो क्यों नहीं? तो बताओ ना यार, बताओ। अभी तो तुम ये कह रहे थे, असल में वो तुम्हारी बात हमको हो सकता है कि समझने से हमको ये हो रहा हो कि हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए हो। अब थोड़ी सी तुम वजाहत से समझा रहे हो, तो अब जरा बताओ क्या है। अगर इस सलात की निस्बत आप अलैहिस्सलाम की तरफ होगी तो महमूद, मकाम महमूद तक पहुंचना हम्द व सना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, ठीक है, ये मुराद होगा कि अल्लाह ताला अपने नबी की शान बता रहा, अपने नबी पे, अपने नबी की तारीफ कर रहा है, अपने नबी की ताज़ीम बता रहा है, ठीक है, औसाफ जमीला का तज़किरा फरमा रहा है। अगर नबी की तरफ सलात की निस्बत होगी, अगर फरिश्तों की तरफ होगी सलात की निस्बत, तो वहां दुआए मगफिरत होगी, यानी फरिश्ते क्या कर रहे हैं, नबी के लिए दुआए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। और अगर सलात की, इसी सलात की निस्बत बंदों की तरफ होगी, मोमिनों की तरफ होगी, तो क्या होगी, आपको ये पता है? अच्छा, अब ये बताओ जरा, एक मिनट ये बताओ, इसका मतलब ये आपने साफ कर दिया कि इस इबारत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का कोई ताल्लुक नहीं है। जी 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 जी, आपने ये बताना चाहा? हाँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने अबुल आलिया से भी नकल किया है कि सलात से मुराद एक मिनट, इस इबारत से ये नकल किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस इबारत से, इस आयत से दुरूद भेजने का कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम बुखारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी ने क्या कहा, ये मैं पूछ रहा हूँ। इन्नल्लाह व मलाइका, इमाम बुखारी ने कहा कि सलात से मुराद एक मिनट, सलात से मुराद, हम ये नहीं कि सलात से मुराद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरी इबारत से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा की जो ये पूरी इबारत है, क्या इससे इमाम बुखारी ने जो नकल किया है, क्या वो ये नकल किया है कि दुरूद सलाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस इबारत का? इमाम बुखारी ने जो कहा वो सुने, क्या कहा है? तो आप तो सलात की निस्बत बता रहे हो ना? बता रहा हूँ ना, सलात की निस्बत इमाम बुखारी ने कह रहा है, इमाम बुखारी कह रहे हैं कि ताज़ीम और मदरसा ना। तो फिर आपका जो ये जो आप ये दलील दे रहे हो ना, आपका ये दलील देना बेजा है। हम सलात की निस्बत नहीं पूछ रहे हैं, हम इस पूरी इबारत की, आपने जो ये बात कही है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना की जो ये इबारत है, इस इबारत से दुरूद व सलाम नबी पर इबारत की बात छोड़ो, जब लफ्ज़ सलात की निस्बत एकदम इबारत से क्या समझेंगे? पुख्ता यकीन इनको हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस इबारत से दुरूद भेजने का कोई ताल्लुक नहीं, इसका इनकार भी इन्होंने कर दिया। अब एक काम करो नूरसन भाई, जी जी जी, इनको सलात की इनको तर्जमा किसकी तरफ क्या माना हो रहा है? अब रुको ना, तुमने सुनो ना, तुमने ये इमाम बुखारी हमने सलात की निस्बत नहीं पूछी है, हमने सलात की निस्बत नहीं पूछी है, हमने इसका तर्जमा पूछा और इसका इस पूरी इबारत की वजाहत मैंने चाहिए। इस पूरी इबारत की वजाहत आपने नहीं की। आप जो है तफसीर रूहुल बयान, आप ये बताइए कि क्या तफसीर रूहुल बयान में एक मिनट अशफाक साहब, ये तफसीर रूहुल बयान में इस पूरी इबारत, ये पूरी आयत जो है, इस पूरी आयत का तर्जमा ये हुआ है कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके दुरूद भेजने का कोई ताल्लुक नहीं है इस इबारत से, इस आयत से? आपने वो बताया नहीं। अब इनको जरा फोटो भेजो। हेलो जी, इनको फोटो भेजो। भेज दूं? हाँ, इनको आप भेजो, पक्का भेजो। इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, अब मैं एक दो फोटो नहीं भेजूंगा, अब मैं इनको बहुत सारे फोटो जमा करके भेज रहा हूँ। हाँ, इनके कई मौलवियों बहुत सारे मौलवियों के मैंने इनके तर्जुमे जो है छाट लिए हैं कि अबे इमाम बुखारी ने क्या कहा है? इमाम बुखारी ने ये आयत नकल नहीं की है। इमाम बुखारी को जो आप सलात की निस्बत, अच्छा इनसे ये पूछ लो कि ये सिर्फ थानवी के तर्जुमे से मान जाएंगे ना?
अरे ये तोबा करेंगे इसके बाद? इनसे ये पूछोगे तोबा करेंगे? मैं इनके बाद मैं तर्जुमा भेजने के बाद फिर से मैं इन्हें कॉल करूंगा। कर दिया है कि इस भारत जरा कहलवा लो, ये करें ना करें ये इनकी मर्जी है, मगर यहाँ कहलवा। क्या अबे थानवी साहब को क्या नबी है क्या? ये बता कि हम नबी देखो भाई, हैं, देखो भाई, यहाँ ये बात नहीं हो रही। हमने तो नहीं कहा कि थानवी नबी है अब अपने मौलवी का मतलब भाई, हम तो तोबा के लिए कह रहे हैं। एक मिनट, अपने मौलवी का भी मतलब हमने तोबा का मुतालबा रखा है नबी को। हाँ, तुमने नबी उसको नबी बना डाला। अरे रुक रहे यार, नहीं रुक रहे यार। रिसाला अल इमदाद में तुमने नबी बना डाला। ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। सुनो एक मिनट, ये बताओ, हेलो, ये बताओ पहले कि तुम कह रहे हो कि थानवी साहब, मतलब अब तुम थानवी साहब का मसला भी छोड़ दिए? थानवी साहब तुम्हारे लिए हुज्जत लात मार दी थानवी को झड़ाक से। बताओ, मतलब कोई नहीं है। तुम ये बताओ कि क्या जो तुम बस मैंने तोबा का ही तो मुतालबा रखा है और कुछ कह दिया। जो तुम खड़े होकर अजान से पहले बड़बड़ाते हो वो साबित ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देख रहे हैं मुसलमानों, अजान से पहले ये सलातो व सलाम पढ़ने को भड़बड़ाना बोल रहा है। बड़बड़ा रहे हो ना, जो बड़बड़ा रहे हो ना नमाज से पहले अजान से पहले, ये साबित देखो, है। आप ये दुरूद शरीफ को जो है बड़बड़ाना चाहिए, तस्बीह दे रहा है। ताहिर गयाबी हरामी ने भी यही बोला था, उसको फालिज की बीमारी हो गई थी। दुरूद शरीफ को तुम्हारा काम गलत है, ये तुम काम कर रहे हो, ये तरीका नहीं किया, इस तरह कैसे होता है? अभी बदल ये दिया। तुम जो तुम अजान से पहले बड़बड़ा, इसने दो गलतियां की हैं, इसने दो गलतियां की हैं। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने को बड़बड़ाना बोल रहा है, दूसरे ठीक है नहीं है दरूद पढ़ने को ये मान ही नहीं रहा है। पहले ये तरीका नहीं है, ये तरीका गलत है। अल्लाह, तो तू तरीका बता सही वाला। चल सही वाला तरीका बता, किसी से भी नहीं साबित है। चल सही वाला तरीका तू बता, कौन सा तजवीज़ करेगा? चल हम उसको मान ले रहे हैं, चल बता। तुम सादिकीन, अरे तू बताना कौन सा तरीका सही है। कर रहे हो ये जो खड़े होकर बड़बड़ा रहे हो, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुन लिया जनाब हजरात, आपने कह रहा है कि तुम खड़े होकर भड़बड़ा रहे हो मातल। अजान के बाद और ये जो जितना मतलब जहाँ भी ये गलत नबी के तरीके को छोड़ के जो तुम दुरूद पढ़ते हो, ये नहीं मानेगा हजरत, इसके दिल पर मोहर लग चुकी है। या शरीयत में इसका कोई कहीं भी नहीं, अगर तुम सच्चे हो तो ये कहा ना कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा का तर्जुमा ये दुरूद सलाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी, इसने यही माना लिया है कि दरूद सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने से कोई माना नहीं है इसका। उसके बाद जो है ये इमाम कोई मतलब नहीं की तरफ गया है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरफ गया है कि सलात की निस्बत अगर बंदों की तरफ की जाए तो क्या माना लिया जाएगा। हाँ, और सही सुन ले पहले कान खोल के, मैं कह रहा हूँ अबे गधे तूने डायरेक्ट मना कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने का कोई मकसद ही नहीं है। यह है कि सलात से मुराद आप अलैहिस्सलाम की ताजीम और फरिश्तों के सामने मदह सना करना है। अच्छा, तो दरूद सलाम पढ़ के करना है या कैसे करना है ये भी तो बता दे। दरूद सलाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कैसे हुजूर की मदह कैसे बयान होगी बता दे। हजरत इसे ये पूछो, हुजूर की मदह किन अल्फाजों से बयान करनी है वो पूछो इससे। तुम ये बताओ कि अरे यही पढ़े जाएगा बार बार, यालमून तालमून करे जाएगा, इसके बाद और भी कुछ याद है। अल्लाह ने हुक्म दिया, ये जो तुम दुरूद पढ़ते हो, ये जो तुम बक 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 करते हो, देखो अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कहा है, ईमान वालों से अल्लाह ताला फरमा रहा है, किसी काफिर देवबंदी ने नहीं कहा, इसका किसी काफिर देवबंदी ने नहीं कहा। दिया है क्या नबी ने ऐसा किया है जो तुम बकवास करते हो अजान से पहले? अल्लाह फरमा रहा है, मुस्तहिदीन ने ऐसा किया है और अपने नबी के लिए फरमा रहा है, तो नबी खुद क्यों कहेंगे? ये तो अल्लाह का फरमान है। पहले ये बताओ कि अगर दुरूद शरीफ कोई अज़ान से पहले पढ़ता है, हेलो, मैंने तुझसे क्या कहा? मैंने क्या कहा तुझसे? कहीं साबित है किसी मैंने क्या कहा? अज़ान तहज्जुद जो है, दुरूद पढ़ना तो सारे सवाब है। दुरूद मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ ये सारी चीजें, मगर ये मान अहादीस सहिया से साबित है। अज़ान तहज्जुद क्या अहादीस सहिया से साबित है? अजान तहज्जुद की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सलाम अरे तो अजान तहज्जुद का बता ना। नमाज में बहुत कैसे जाहिल मतलब को अजान तहज्जुद आज जो मक्के और ये जाहिल मुताल अकल मुजाहल के पैरोकार हम बता रहे हैं कि तुम अजहल हो, ओ नजदीकी नाजायज औलाद आ गया बदतमीजी पर। करते हैं अजान तहज्जुद जो मक्के और मदीने शरीफ में तुम्हारे बाप दादा दे रहे हैं, समझे? जो अजान से पहले बड़बड़ाते हो, अजान तहज्जुद जो बड़बड़ाते हो, दे रहे हैं मक्के और मदीने करते हो, ये बताओ कि क्या ये देख रहे हैं हजरात आपके सामने इस देवबंदी का पूरा जहर उगल के सामने आ गया है, पूरा जहर उगल रहा है ये देवबंदी। ये देवबंदी जहर उगल रहा है, जहर
मैं मुस्तहिदीन ने इसने ऐसी अपने- बकवास की है जो इसमें तुम कोई कर रहे हो। दिक्कत नहीं है, इसने अपने बाप दादाओं का मतलब अजान बयान के किया। बाद, नमाज के बाद ये ऐसी बकवास वो कहाँ इसके से बाप लाते दादाओं हो? इसने का- शैतान का रवैया अपना लिया है। और जो सिफत मौलवी अब्दुल वहाब नदवी की सिफत है वही सिफत इसके अंदर पाई जाती है और उसी को ये वाजे कर रहा है, उसी को ये बयान कर रहा है। ठीक है, जी, जी, जी। गौर करें कि ये देवबंदी मौलवी किस कदर जो है, किस कदर नबी की शान में जो दुरूद शरीफ हम लोग पढ़ते हैं, तो दुरूद शरीफ को ये बकवास बोल रहा है और बड़बड़ बोल रहा है। हाँ, गौर करें, इसका फोन काटिए तो रसूल भाई, इसका फोन काटिए, ये जाहिल है, कभी कोई मतलब नहीं है। हेलो ऐसा फेल किया। रसूल भाई, हेलो, जी जी जी, इसका फोन ऐसे लोगों को फोन मत किया करिए, समझ रहे हैं। मैंने नहीं किया है, इसी ने किया है कॉल। जब आप सोचें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने को, समझ रहे हैं, जी या आदमी जो बकवास कह रहा है कि जो तुम लोग अजान से पहले बकवास करते हो, यानी जो हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अजान से पहले, तो ये बकवास है, समझ रहे हैं। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अल काज़िबीन। और तर्जुमा खुद ही कर रहा है, अपने देवबंदियों का तर्जुमा खुद ही कर रहा है। तर्जमा में उसने दुरूद शरीफ भी मान लिया और कह रहा है कि इस इबारत से इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा का तर्जमा ये नहीं है। क्या नाम है, इससे ये मुराद नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद भेजा जाए, समझ रहे हैं। जी इससे ये मुराद नहीं है, वो ये कह रहा है। हालांकि हम दूसरी आयत से इसको साबित कर देते, लेकिन इसी इबारत में मुझको बहस करनी थी कि इसका और इसकी जमात का क्या मौकफ है इस इबारत से, समझ रहे हैं। जी। लेकिन इसने जो है अपनी जमात का मौकफ बयान नहीं किया, समझ रहे हैं। और थानवी को भी कह दिया वो कोई नबी है क्या? और अपने मसलक थानवी के मसलक से भी ये भाग गया, समझ रहे हैं। जी। तो चूंकि इन लोगों को अब बताइए ये कैसे मानने वाले हैं, कैसे थानवी को मानने वाले हैं ये लोग? बताइए, लात मार दी थानवी को, कितनी तकलीफ होगी देवबंदियों को इसके इस कहने से? हाँ कितनी तकलीफ होगी देवबंदियों को इसके इस कहने से? बताइए कि ये कह रहा है कि थानवी कोई नबी है क्या? मैं तो नहीं जानता कि थानवी को, हमारे यहाँ तो नबी आखिरी नबी हमारे हैं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इन्होंने थानवी को नबी बना डाला हजरत। इनके यहाँ नबी जो है, नबी के खातमियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और नबी भी आ जाएगा। इनके यहाँ तहज़ीरुन नास में मौजूद है। जी जी, थानवी को नबी बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, इसीलिए तो लिखी थी वो किताब। इनकी किताबों में है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, समझ रहे हैं। जी, इनकी किताब में, हमारी किताब में नहीं है। इनकी किताब में है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तहज़ीरुन नास में जो है नबुव्वत खातमियत, नबी के खातमियत का जो है इनकार हमारे मौलवी ने नहीं, इनके मौलवी ने किया है। ये जाहिल जो है तफसीर रूहुल बयान की बात कर रहा था, समझ रहे हैं। तफसीर रूहुल बयान में इस इबारत क्या कह रहा है, वो सलात की निस्बत जो है जब बंदों की तरफ की जाए तो क्या माना होगा, और ये सलात की निस्बत अगर खुदा की तरफ की जाए तो क्या माना होगा। अरे यार, हम निस्बत तो पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि जो ये आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो जाहिर बसी बात है कि तफसीर रूहुल बयान में ये पूरी इबारत की तफसीर पेश की गई होगी कि इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है ना जी वो तुम भेजो, उससे वो भेजने से काफिर रहा, समझ रहे हैं। जी। और जरा वो तर्जुमे कलाम पाक मुझको जरा भेजिए तो। हाँ वो भेज रहा हूँ मैं आपकी तरफ। जरा भेजिए। अच्छा, इसने तर्जुमा खुद पढ़ा तो इसने खुद ही कहा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या भेजते हैं। कहने लगा क्या भेजते हैं, या जहां पे है दरूद भेजते हैं तो कह रहा क्या भेजते हैं, उसको काट रहा था। फिर बाद में खुद ही पढ़ रहा है कि दरूद और सलाम भेजा करो। इसको लगाइए यूट्यूब पे और जरा वो भेजिए तो थानवी का तर्जुमे कलाम पाक, इसका तर्जुमा जो है। हाँ मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर वहीं उस ओरिजिनल अगर मिल जाए तो ओरिजिनल का जो है ऊपर का स्क्रीनशॉट, उसका नाम वगैरह सब ले लीजिए। और इनके कई देवबंदियों का मैंने तर्जुमे निकाले हजरत, सब में यही तर्जुमा है। उसको थोड़ा भेजिए, मैं देखूं। समझ रहे हैं हजरत, सब में यही तर्जुमा आ रहा है। मैं निकाल लूंगा, उसको थोड़ा भेजिए। हाँ, कुरान उस पे ले लीजिए ना, क्या नाम है, प्ले स्टोर पे। मेरा मोबाइल जो है ना 6 पॉइंट रह गया हजरत। अच्छा, क्या नाम है उसके तर्जुमे का नाम क्या है? देवबंदी तर्जुमा निकाल लीजिए। और अच्छा। या तो थानवी का कह के निकाल लीजिए या देवबंदी तर्जुमा कह के निकाल लीजिए। अभी निकालते हैं।